Good morning, all of you. Today I have taught you letter writing. How many types of letter writing? What is the process of letter writing? How the letter writing is writing? And there are different types of letters. I have explained you, and all of you have to understand it. Write it down. Number one, business letter. Business letter. Number two, personal letter. Number three, a letter to acquaintances. Letter to acquaintances. Yes, acquaintances. A letter to the editor. A letter to the order. Order people such as a teacher, such as the teachers or the highly respected sir. Understand? Write it down. There are four forms of letters. Number one, business letter. Number two, personal letter. Number three, a letter to the acquaintances. A letter to the order people such as a teacher or the highly respected sir, such as editor letter, prime minister letter, CM letter, chief justice letter, and all those letters. Okay? क्या बोलो, कहीं दिक्कत? बोलो बोलो बोलो. Order people such as a teacher or the highly respected sir. Respected sir. Highly respected sir. Okay? I think that all of you know there is a conversation between the person with the process of writing. That process of writing is called a letter. The conversation of a person between a person, that is one part of a life, like a letter. Nowadays we have to use emails, WhatsApps, Instagram. There are different types of things which is not to be basically not in manner to use letter. Letter is now to be probably in a closing position. Everybody not using letter. Whatever you like, you have to message
to your mobile through a person whom you message, what you need, what kind of need, all those things. But a letter is writing is a specific idea, or you can say a grammar, or you can say a skill by which you can expose yourself in a office, or you can say in a person, in front of a person who is highly authority in front of you. लेटर एक ऐसी प्रक्रिया है जो जिसके द्वारा जहां आप पहुंच नहीं सकते हैं, क्या आप सीएम को फ़ोन करेंगे? क्या आप पीएम को फ़ोन करेंगे? क्या आप चीफ जस्टिस को फ़ोन करेंगे? क्या हाई कोर्ट में रीड करेंगे फ़ोन से? ऐसा नहीं है। अब एफआईआर भी होने लगी है बाई मोबाइल हो रही है, लेकिन लेटर इज अनदर थिंग। अगर आपको किसी फंक्शन में किसी चीफ जस्टिस को बुलाना है तो बाय होम प्रोसेस यू कैन कॉल बाय लेटर। जैसे किसी गेस्ट को बुलाना है, डीएम को बुलाना है, तो आप किस थ्रू बुलाएंगे? लेटर के थ्रू बुलाएंगे। तो लेटर एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आपको, आपके गुण को, आपकी पारदर्शिता को, आपकी स्टेबिलिटी को, आपकी गुणवत्ता को, आपकी साक्षरता के गुण को प्रस्तुत करता है। अगर लेटर अच्छा आपको आता है, आपकी इसकी उसी से पता चलती है। द मॉडल which you used, the words which you used in the letter, that is most respected words, the words which is decorum by you to that person, by you to that person. That person knows your feeling by using that letter. That letter is too much highly appreciable, or you can say accepted by that person, that which letter you have given to that person. That person means that authority. That authority, what kind of authority? A authority like Government of India, state government, central government, or any other authority which is trust, association, company, all those things. अब देखिए, आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मैंने बात बताई, लेटर लिखने की प्रक्रिया जो है अब सब बंद हो गई। आपने देखा होगा फिल्मों में भी लिखे जो खत तुझे तेरी याद में, हजारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, और जब शाम हुई तो नज़ारे बन गए। गाना है ना, है गाना, है ना? तो लेटर था वो। अब एक गाना और बता देता हूँ। फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। राखी है इसमें, पिक्चर है उस दौर की जिस समय लेटर का बहुत प्रचलन हुआ करता था। तो लेटर इज नॉट एन इजी थिंग। लेटर इज एन एक्सप्रेशन। यू हैव टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, योर आइडिया, your feeling, your regard, your attitude, your transaction, your behavior, your chiefness, your lookness, your beautifulness, all those things. I today teach you one letter, writing leave letter, छुट्टी का लेटर बताऊंगा, and you have to write down in your copies. मैं अभी बता रहा हूँ तरीका, एक लेटर बताऊंगा और एक लेटर बताऊंगा। लीव लेटर लिखिए, आइए लिखिए, इसको लिखिए।
अब देखिए जो 2 लिखा है ना, इसके बाद कॉमा जो देंगे जस्ट इसी रेंज में दा लिखेंगे, फिर ये जो 2 के पास यहाँ जाएंगे सर, इसको मिटा देंगे, बताने के लिए बता रहा हूँ सर। ओके, पैटर्न बता रहा हूँ। सर के बाद यहाँ चले आएंगे What is your name? Which semester? First semester. 11th? Okay. Respectfully, I beg to say, अगर आप लोगों ने ऊपर वाला लिख लिया हो तो मिटा के मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा। बहुत छोटा है। ओके, स्टार्ट फ्रॉम हियर। लिखिए, suffering from fever since The last 2 days। अब आपने अपनी अभिव्यक्ति कर दी प्रिंसिपल को कि मैं 2 दिनों से फीवर से ग्रसित हूं, क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। क्या चाहिए? छुट्टी चाहिए। Kindly grant me 2 days leave। लेकिन इतना लिखने से काम बनने वाला नहीं है। ग्रांट कितना दिन का 2 डेज का चाहिए, कब कब, तारीख भी लिखना पड़ेगा। फ्रॉम 6 to 8 जनवरी। OBLIGE oblique 6 to 8 January and oblique फुल स्टॉप। यहां तक लिख लिया oblique। अब देखिए, लेटर में फ्रेमिंग पर ही नंबर होता है। 10 नंबर तो लेटर कंस्ट्रक्शन पे होता है, 10 नंबर सब्जेक्ट पर होता है। कितना हो गया? 20। सही है तो 16, 18, 17। गलत है, अगर आपने सब्जेक्ट सही किया है, प्रोफार्मा गलत है तो 10। अगर प्रोफार्मा सही है, सब्जेक्ट गलत है, 10।
तो 50-50 में आप रहेंगे। बहुत अच्छा बिजनेस है, बिजनेस अच्छा है ना। पास होने के लिए बता रहा हूँ। मिटाऊं थोड़ा सा, आप इसको लिख लीजिएगा। लीव लेटर है, एक प्रोफार्मा जाने रहिएगा, बता रहा हूँ इसमें और बाकी है। अब देखिए जो जहां लिखे हैं उसी के लास्ट में जहां ऑब्लिक है उसके नीचे लिखिएगा योर्स ओबीडिएंटली। पीछे हो जाते हैं बेटा, नहीं आएगा नहीं, आप लिख लीजिएगा योर्स ओबीडिएंटली। क्या लिखेंगे इसके नीचे बताइए? गुड, अपना नाम सौरभ, गौरव, निशा, जो भी हो। आपका नाम क्या है? निखिल मिश्रा। क्या? निखिल मिश्रा। निखिल, चलिए निखिल। सौरभ, गौरव, निशा, निखिल। यहां लिखिए निखिल मिश्रा। और क्या लिखेंगे बताइए? और ध्यान दीजिएगा, कहीं कॉलेज का नाम मत लिखिएगा, नहीं तो आपकी कॉपी पकड़ी जाएगी। जहाँ 10 पाना वहाँ 0 पा जाएंगे। कहीं विरोधी के हाथ में चली गई कॉपी ना, हमारे भी विरोधी हैं कॉलेज के, तो जान जाएगा कि सौरभ मिश्रा जो, निखिल मिश्रा जो है तो सीबी सिंह का स्टूडेंट है, उसको दाबो। तो बेटा इतने तक रखना। अब इस लेटर में क्या छूट रहा तो आप लोग बता दीजिए, क्योंकि सब लोग प्रौढ़ व्यक्ति हैं, ग्रेजुएशन इंटर सब करके आए हैं। मैं मिशन में जब पढ़ता था, सुनिए ध्यान से, जब मैं मिशन में पढ़ता था तो क्लास 3 में मैं लेटर लिखा था। क्लास 3 गुरु नानक मिशन, क्लास 3 में मैं लेटर लिखना शुरू किया था, और 5 से मैं अंग्रेजी बोलना शुरू किया था टूटी फूटी, और 6 से मेरी अंग्रेजी सही हो गई थी, और 10 में मैं स्पीच देता था। तो बताइए लेटर में क्या छूटा इंसान? बहुत छोटी चीज़ पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं बेटा, रोल नंबर लिखो, घबरा जाओगे। नहीं, लेकिन सर नाम भी XYZ करके लिखा था। आज क्या तारीख है? 3। लेकिन सर एग्जाम में लेटर लिखते तो वहाँ अपना नाम भी तो नहीं लिखा था। नाम लिखा जाएगा। आप क्लास मत लिखिए, क्लास में लिखेंगे ना, कॉलेज का नाम ना रोल नंबर, ये दोनों मत लिखिएगा। लेकिन ये डेट मत छोड़िएगा। इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लेटर। इफ यू लीव दिस थिंग, योर नंबर इज नॉट कमिंग प्रॉपर। दिस इज लीव लेटर। समझ में आ गया? अब देखिए एक दूसरा लेटर आपको बता दें। दूसरा लेटर ये है, थोड़ा मिटा दो। लाइन बंद मिटाना, लाइन बंद मिटाना, पूरा सब मिटाना। अब देखिए आप लोगों ने अमूमन तौर पे लीव लेटर लिखा होगा, ये तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत? बहुत इंपॉर्टेंट लेटर है आपके लाइफ के लिए, एग्जाम के लिए, अक्सर पूछता है। मैं दूसरा इंपॉर्टेंट लेटर फिर बताने जा रहा हूँ, जो एग्जाम में आता भी है, आएगा भी। और यहाँ सब लोग, एक चीज़ है, 2 लोग नए हैं, व्हाट इज योर नेम? आई कार्ड लगा के सब लोग आया करिए। हाँ खत्म हो गया है, आज आई कार्ड में ही रहा करिए। बच्चे दोनों अच्छे लाइब्रेरी से बुक उठा लेते तो आई कार्ड जमा हो जाता है। नहीं ले लिए, लाई कार्ड लगाइए, और कोशिश करिए कि भी ड्रेस अच्छा रहे, जैसे इन लोगों का ड्रेस है, जैसे इनका ड्रेस है। ये नहीं कह रहे वाइट पैंट शर्ट पहनिए, जैसे ये बच्चा है, बहुत अच्छा लग रहा है, गुड लुकिंग। देखिए एक स्टूडेंट के कई 300-500 अप्रिसिएशन होते हैं, बड़े बड़े स्कूलों में होता है। लुकिंग फर्स्ट हैंडसम,
talking style too much impressive. Whom you talk, that is material. What you talk, that is material. Not talking unnecessary. Dressing is feasible, बहुत इम्पोर्टेंट. और लैंग्वेज ऑफ कैंपस, आप जब कैंपस में रहें तो एकदम छात्र की तरह रहें, बाजार में रहें तो बाजार की तरह रहें. सही गलत? एकदम. यू आर माई स्कॉलर, आई एम नॉट यूजिंग स्टूडेंट. यू आर माई स्कॉलर. Once upon a time, I am that chair, and my teacher taught me 2000 में मुझे टीचर ने पढ़ाया. मैं उस कुर्सी पर बैठता था और 2021 में आज मैं यहाँ हूँ, आप मेरी कुर्सी पे हैं. और वो आशा करते हैं कि 5 साल बाद ठीक ठाक से ईश्वर ने आपको रखा. LLB 3 साल, LLM 2 साल, 5 साल में आप यहाँ आ जाएंगे. आई एम ऑल विशेष ग्रीटिंग ऑल ऑफ यू. आप यहाँ होंगे, कोई और वहाँ होगा. आप उनको बताएंगे और वो सुनेगा. और जानती हैं, हिंदुस्तान का नहीं विश्व का, अमेरिका में प्रोफेसर को जानती हैं एमेरिटस कहा जाता है, जो एम्बेसडर की हैसियत रखता है, राजदूत, एम्बेसडर. एक देश में एक एम्बेसडर होता है, पता होगा आपको. राज्यपाल से भी बड़ा होता है. सैलरी कितनी है जानती है अमेरिका में? 22 लाख इंडियन मनी. और जानती हैं, प्रोफेसर कभी कोर्ट के अलावा कभी चलता नहीं है. और कार उसकी एक बड़ी ख्वाहिश होती है. और सुनिए, रीडिंग किताब उसकी लाइफ होती है, और स्टूडेंट उसके लाइफ के बहुत बड़े पार्ट होते हैं. और इतना बच्चे पढ़ा दीजिए, बेशुमार बच्चे तैयार कर दीजिए, तुम घर जाओ तो मेरी तस्वीर तुम्हें दिखाई दे कि टीचर ने हमें कुछ पढ़ाया था, वो चीज़ मेरे दिल में गूंज रही है. टीचर वही बड़ा जो अपनी छाप तुम पर इतना छोड़ जाए, तुम रास्ते में चलो तब भी तुम्हें याद आए. गलत कह रहा हूँ? सही? हाँ. और सुनिए, आप स्कॉलर हैं, मैं प्रोफेसर हूँ, ये मान के चलेगा. स्टूडेंट कभी मत मानिएगा. यू आर नॉट स्टूडेंट इन माई आई. यू आर माई फ्रेंड. आई एम योर गाइड. आई एम फिलोसफर. यू आर माई स्टूडेंट. स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में क्या कहा पता है? शिकागो स्पीच कब हुई थी? सही पता नहीं आपको. शिकागो में कहा था 1800. राइट, एकदम सही. शिकागो में एक चीज़ कहा था, सब लोग स्पीच देने आए थे. सबसे बेस्ट स्पीच इनकी क्यों मानी गई? बता देता हूँ. स्पीच भी मेरे पास है, कहिए तो मेल कर, व्हाट्सएप कर दूँगा. एक ही शब्द कहा था, सबसे बेस्ट स्पीच होगा. सभी ने बोला, सभी ने बोला. 1 मिनट का समय इनको मिला था, और इनको गद्दी नहीं मिल रही थी, जगह नहीं मिल रही थी, कुर्सी नहीं मिल रही थी बैठने के लिए. एक कहाँ से संत आके बैठा है. सब लोग, बहुत लोग आए थे विदेश से, विश्व से. ये भगवा में गए थे, लेकिन जब गद्दी मिली, बोले किसी तरह इनको बैठने दीजिए. बैठने दिया. इनका नाम बड़ी मुश्किल से वहाँ बुलाया गया. तब क्या हुआ? जब चेयर पाए, फिर इन्होंने माइक पाए, इन्होंने एक शब्द कहा. सब लोगों ने अपना अपना प्रोनाउंसिएशन किया, बट विवेकानंद ने एक ही शब्द कहा, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर एंड सिस्टर एक्सेप्ट माई वन वाइफ. तालियां गूंजती रहीं. तालियों की आवाज़ इतनी गूंजी कि हॉल फट गया. स्पीच और है, अभी क्लास का समय है, मैं बता दूंगा. शिकागो मेरे पास है, पूरा लेक्चर ले लीजिएगा. और सुनिए, लाइफ में 2 चीज़ करिएगा. वर्ड्स जो होता है, इसकी बड़ी कीमत होती है. वर्ड्स इज एक्सपेंसिव एंड एक्सप्रेसिव एंड वैल्यूएबल देन शॉर्ट. ये वर्ड जो है तलवार से भी ज़्यादा घातक होता है कि नहीं? और एक चीज़ और तुम्हारे पास, पेन. पेन इज मोर पावर देन वेपन. पेन जो है शस्त्र से भी ज़्यादा
और एटम बम से भी तेज होती है पेन। अगर कोई कहता है एटम बम बड़ा है तो तुम कहना पेन बड़ा है, हम सिद्ध करके बता देंगे। समय आज कम है, जाने दीजिए। एडिटर लेटर, ठीक, ओके, थैंक यू।